चला And सके। indeed, God has given such a wonderful opportunity to be in the midst of this nature and remember Him. परमेश्वर ने आज हमें कितना अच्छा मौका दिया है कि हम इस प्रकृति के बीच में रहकर हम प्रभु की महिमा कर सकें। And we really thank God for all the blessings of life that He has given us, my friends. और हर एक आशीषों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। And there will be so many reasons as to why we should worship Him and start the day with meditation. और ऐसे बहुत सारे कारण हैं कि हम परमेश्वर को धन्यवाद क्यों दें और उसकी उपासना If you list it down, it will be, you will never able to complete the list. अगर हम इसकी सूची बनाएंगे तो वो सूची जो है वो कभी खत्म नहीं होगी। So at every breath of our life, we have to thank God for the life that He has given. क्योंकि हर एक श्वास जो हम लेते हैं उसमें हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। And all these events what takes place in our lives, it's a gift of God, nothing else. और हमारे जीवन में जितनी ही घटनाएं घटी हैं ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से हमारे लिए भेंट है। This morning, God would like to encourage us through this devotion as well as through the sessions of the day. और इस सुबह में हम शुरू करने जा रहे हैं आज के दिन की परमेश्वर के नाम की भक्ति के द्वारा। He encourages each and every time in our lives, my friends. और परमेश्वर हर समय हमें उत्साहित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। And today my text is something related to encouragement. और आज मेरा जो विशेष मुद्दा है वो है उत्साह के ऊपर है। And we all require this encouragement at least once in a day. और ये इस तरह का जो उत्साह है वो दिन में कम से कम एक बार तो होना चाहिए। Did you hear my sentence? At least once in a day, someone has to come and encourage us. और क्या आपको मेरा कहना समझ में आया है कि दिन में कम से कम एक बार तो कोई आकर हमें उत्साहित करे। This is what the research has been done. और इसीलिए इसका ये संशोधन किया गया है। That we need encouragement every now and then. क्योंकि हमारे जीवन में हर एक पल में उत्साह होना जरूरी है। I have a text this morning for all of us, for me too. आज आप सबके लिए मेरे पास में बहुत ही इस विषय पर प्यारा सा वचन है। Deuteronomy chapter 1 और ये लिया गया है व्यवस्था विवरण की किताब से पहला अध्याय and verse 38. और 38 वचन है। Deuteronomy chapter 1 verse 38. व्यवस्था विवरण की किताब है पहला अध्याय 38 वचन। Joshua the son of Nun, who stands before you, he shall go in there. Encourage him, for he shall cause Israel to inherit it. नून का पुत्र यहोशू जो तेरे सामने खड़ा रहता है वह तो वहां जा नहीं पाएगा, सो तू उसको हियाव दे, क्योंकि उस देश को इजराइलियों के अधिकार में वही कर देगा। The background of this text is this. और इस वचन का जो ये हिस्सा है वो इस तरह से है। It's been almost 40 years now. अब कुल मिला के 40 वर्ष हो चुके हैं। Almost is going to complete 40 years और very soon. और बहुत जल्द 40 वर्ष पूरे हो जाएंगे। The exodus of Israelites from the Egypt till the place where they were. और जो मिस्र देश से जो वो बाहर निकले थे उस समय से 40 वर्ष पूरे होने वाले। And there comes a time when God calls Moses and tells him this announcement. तो उस समय परमेश्वर जो है मूसा के पास में आकर ये सूचना देते हैं। And he tells him that Joshua is going to lead hereafter, not you. और परमेश्वर कहते हैं कि अब के बाद केवल यहोशू ही इनकी अगुवाई करेगा और तू नहीं। Just imagine the condition of Moses at that time when he heard this announcement. तो आप सोच लीजिए कि उस समय मूसा जो है वो किस परिस्थिति में आया होगा जब उसने ये सूचना सुनी थी। And Joshua is going to lead hereafter in your place, but you are not going to go. और परमेश्वर ने कहा कि अब की बार केवल यहोशू ही सबकी अगुवाई करेगा पर तू नहीं करना। And encouragement is something that keeps us going, especially when we take new job. उत्साह एक प्रकार का ऐसी मतलब खुशी है जब हमें एक मनपसंद जब हमें नौकरी मिलती है। Encouragement is something that motivates us. और उत्साह एक ऐसी वस्तु है जो हमें प्रेरणा देती है। Encouragement is something keeps us loved, cared, and bothered. और उत्साह एक ऐसी वस्तु है जो हमें हर बार कुछ मतलब हमारा ख्याल रखती है और हमें पूरी तरह से प्रेम में रखती है। We get that feeling that somebody is caring for us and therefore they are encouraging us. तो इस माध्यम से हमें ऐसा लगता है कि कोई तो है जो हमारी चिंता करता है और हमें प्रेरणा देता है। God is telling Moses to encourage Joshua.
और परमेश्वर जो है वो मूसा को हियाव देता है कि वो यहोशू को अगुवाई करने के लिए समय दे। The first duty of each one of us as pastors and volunteers in the church is to have the words of encouragement. और ऐसे ही जितने यहाँ पादरीगण हैं तो आपको भी आपके मंडली में सभी आपके सभी सभासदों को उत्साहित करना है। Always have positive words in your mouth of encouragement for the members. हर समय आपके सभासदों के लिए उत्साहित शब्द के वाक्य इस्तेमाल करिए। You don't know through what they are going. आपको पता नहीं कि वो किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। You don't know through what problems and depression they are going personally. आपको पता नहीं कि कौन से समस्या या कौन से टेंशन में गुजर रहे हैं। And therefore you need to have in any situation the words of encouragement in your mouth. तो ऐसे हर एक परिस्थिति में आपके पास में ऐसे उत्साहित करने वाले शब्द होने चाहिए। And this also gives us mental good health as well as overall good health for us if somebody comes and encourages us. और इसके द्वारा हम उन लोगों के लिए मानसिक जो स्वास्थ्य है वो उनकी अच्छा होने के लिए उन्हें सहाय्य करते हैं और साथ ही साथ उनके पूरे शरीर के लिए भी उनका स्वास्थ्य बना रहता है। And therefore the encouragement also gives us good amount of joy that you want. और साथ ही साथ उस व्यक्ति को एक माध्यम से पूरा आनंद भी प्राप्त होता है। If somebody takes care of mission report, encourage, say words of encouragement to them. अगर कोई मिशन समाचार पढ़ना चाहता है तो उन्हें उत्साहित करें। If somebody is teaching a good lesson study, right after that thank the person. Never forget to thank him. अगर कोई व्यक्ति सबक स्कूल पाठ सिखाता है तो आप भूलिए मत कि आप उसको धन्यवाद दें, इससे वो उत्साहित हो जाता है। In your welcome, when you are welcome for the divine service, have words of encouragement. अगर आप डिवाइन सर्विस के समय में स्वागत करते हैं तो आपके शब्द में उत्साहित करने वाले वाक्य होने चाहिए। If you see our church hymnal in the churches that we have, especially in English churches, और जब आप चर्च के जो गानों की किताब है अगर उसमें आप देखते हैं विशेष करके इंग्लिश चर्चों में होते हैं, at the end of the book there are so many songs or thoughts have been categorized. और आखिरी पन्नों में आप देखोगे कि उसमें अच्छे से गाने लिखे हुए हैं और कुछ अच्छे वचन भी लिखे There हुए are हैं। Bible verses for offertory, that is offering, और वहाँ पर दान के लिए वहाँ पर वचन लिखे for हुए हैं thanksgiving, और धन्यवाद के लिए वचन दिए हैं, for welcoming, स्वागत के लिए वचन दिए हैं and for all those things there. और हर एक कामों के लिए वचन दिए हुए हैं। That itself tells us that what kind of words we need to have when you are on the stage or when you are in the ministry of God. तो उसी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारा भी किस तरह से शब्द होने चाहिए, किस तरह से हमारे भाषा होनी चाहिए जब हम किसी को उत्साहित करते हैं। That encourages our church members to be with you and do what you say. तो इसी माध्यम से हमारे कलीसिया के जितने भी सभासद हैं उन्हें भी उत्साहित होने के लिए मदद होती No है। doubt why Moses was told to encourage Joshua. और वैसे ही मूसा को भी यहोशू को उत्साहित करने के लिए बोला गया था। We all require good feedbacks. और हमें भी बहुत अच्छे जो हमारे लिए जो शब्द मिलने चाहिए। We all require something good words of encouragement from fellow human beings. और हमें भी लगता है कि हमारा भी कोई अच्छे शब्द बोलकर हमें उत्साहित करे। Here in our today's text we find Joshua is about to take the new job. अब यहाँ पर इस वचन में हम देखते हैं कि यहोशू जो है वो नया काम हाथ में लेना है। And it's not an ordinary job. परंतु ये कोई साधारण काम नहीं है। Lakhs of Israelites is going to be leader. लाखों की संख्या में वो उन्हें अगुवाई करने वाला One है। of the most responsible person Joshua will be hereafter. और आगे चलकर यहोशू जो है वो सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति कहलाएगा। And who else? But Moses is asked to encourage Joshua. और किसने कहा? मूसा ने कहा कि यहोशू को उत्साहित And करे। God asked Moses to encourage Joshua. क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि यहोशू को उत्साहित करे। But I want to take your thoughts a little bit away from all this. परंतु आज मैं आपके विचार इस संदेश से थोड़ा As दूर a ले जाना human चाहता हूं। being, Moses must have been the most discouraged person. हो सकता है कि मूसा जो है वो पूरी तरह से दुखित ऐसा व्यक्ति हो। He must have been the most discouraged person on the face of the earth at that time. हो सकता है कि उस समय मूसा भी बहुत ही निराशवादी ऐसा व्यक्ति हुआ होगा उस समय। Because God just announced that you will not enter the promised land. क्योंकि परमेश्वर ने उससे उसी वक्त कहा था कि तू उस कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाएगा। But Joshua, your junior, he is going to lead hereafter. परंतु यहोशू जो है वो जो तेरा कनिष्ठ है वो अगुवाई करेगा। So in true sense, who is in need of encouragement?
तो एक अच्छे विचारों में उत्साहित करने वाला कौन है? Moses himself. तो खुद मूसा है। He's a human being. He's discouraged at the announcement that he's not going to see the promised land. मूसा जो खुद है वो निराश हुआ है क्योंकि उसे ये सूचना मिली है कि वो उस देश में प्रवेश नहीं कर पाएगा। And Moses has been hearing about this promised land since the time of Abraham. All those stories, the generation after generation, they're hearing the stories about the promised land, but he himself will not make it. क्योंकि हो सकता है कि मूसा जब छोटा हो या फिर उससे पहले से वो लोग वंश से लेकर वंश तक यही बातें सुनकर आ रहे हैं कि परमेश्वर हमें उस वचन के देश में ले जाने वाले हैं। Can you relate this situation to yours in the church? क्या आप इस जो कहानी को आप अपने जीवन में अनुभव करके आपके सभासद को बता सकते हैं? Can you relate this incident of Moses, experience of Moses in your life while you are serving the mission? क्या आप जैसे सेवकाई करने वाले जो पादरीगण हैं, इसे आप आपके जीवन में आप या फिर आपके मंडली में आप इसे बता सकते हैं? It was you actually, ये दरअसल आप है, but someone else got it. परंतु किसी और को मिला है। And then God tells you, go and encourage him. फिर परमेश्वर आपसे कहते हैं कि जाकर उन्हें उत्साहित करें। This is what all about lay members and church pastors relationship. तो ऐसा ही एक नाता होता है जो हमारे सभासद होते हैं और हम, This is what it is. तो इसी प्रकार से ही है। No matter what in situation you are in, आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, no matter what problems you are personally going through, आपकी जो वैयक्तिक समस्या है आप उसमें से गुजर रहे हो, do not display it in the church. आपको उसे सभासदों के सामने नहीं लाना है। God wants you to say words of encouragement to the lay members. क्योंकि परमेश्वर आपसे यही इच्छा रखते हैं कि आप सभासदों को God उत्साहित wants करें, all of us to encourage each other. और परमेश्वर ये भी चाहते हैं कि हम एक दूसरे को उत्साहित करें। Almost 40 years now. आप पूरे 40 वर्ष हो चुके हैं। Almost 40 years with great misery and difficulty, Moses had led the people of children of Israel. पूरे 40 वर्ष में मूसा ने बड़े कठिनता से और बड़े समस्या से सारे इजरायलियों की अगुवाई की थी। Every now and then people were murmuring. और हर बार जो इजरायली जो थे वो कुड़कुड़ा रहे In थे। today's language we can say every now and they were giving him bad words. और हम देखते हैं कि हर समय में मूसा के विरुद्ध वो कुड़कुड़ा रहे थे। Every time they revolted against him. और हर बार मूसा से उन्होंने विद्रोह किया। But yet Moses is not allowed to go to the promised land at the end of the day. लेकिन इसके बावजूद भी मूसा को ये कहा गया कि तू उस वचन वाले देश में नहीं जा सकता। You and me are Moses in our churches. आप और हम मूसा के जैसे हैं हमारी। Over here Moses is held as the leader of the Exodus. और यहाँ पर बताया गया है कि मूसा जो है वो लोगों को बाहर निकालने वाला अगुवा है। It was only through Moses God could bring out from Egypt people of Israel. क्योंकि केवल मूसा ही था जो सारे इजरायलियों को मिस्र देश से बाहर ला सकता था। Moses God entrusted 10 commandments. क्योंकि मूसा द्वारा ही वो 10 आज्ञाएं दी गई थी। Yet for all his blessings he was not allowed to enter the kingdom that was तो promised. इतने सारे आशीषों के बावजूद भी उसे उस वचन वाले देश में जाने के लिए मौका नहीं मिला। But he might be the most discouraged person at that time. और हो सकता कि उस समय वो सबसे ज्यादा निराश व्यक्ति As a हो। human being, I can think that. और मनुष्य के नाते मैं ये सोच सकता From the हूँ। point of human being, I can think that. और मनुष्य के विचारों से मैं ये सोच सकता हूँ। And I want you to think this way. और मैं भी चाहता हूँ कि आप भी इसी माध्यम से सोचिए। How Moses must have felt. मूसा को कैसे लगा होगा। We might go through such situation, my friends, brothers. मेरे प्रियो, हम भी इस माध्यम से कभी ना कभी गुजरते होंगे। But the author says here. परंतु यहाँ पर जो आज का जो लेखक है ये कहता है, Yet God wanted Moses to encourage him. लेकिन फिर भी परमेश्वर यही चाहते थे कि मूसा जो है वो उत्साहित करे। My friend, God knows his people. मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को पहचानते हैं। God knows Moses. परमेश्वर मूसा को भी पहचानते हैं। God knows Moses' capacity of being spiritual leader. और परमेश्वर ये भी जानता था कि मूसा जो है वो कितना आत्मिक अगुवा है। God knew Moses will be never discouraged by this announcement. और परमेश्वर ये भी जानते थे कि मूसा का जो निराशापन है उसके द्वारा वो उत्साहित नहीं करेगा, ये जानता था। But then why this verse is here in the Bible? लेकिन फिर भी इस पवित्र शास्त्र में ये वचन क्यों है? This is just to teach each one of us. ताकि ये आपको और हमें कुछ सिखा सके। As we are in the leaders of the church, जैसे हम अपने कलीसिया के अगुवायक हैं, we need to go through all this situation. हमें सारे परिस्थितियों से गुजरना है। Yet we should encourage each other. फिर भी हमें एक दूसरे को He उत्साहित knows our weaknesses.
परमेश्वर को हमारी कमजोरी पता He है, knows our strengths. हमारे ताकत पता है, He knows our situations. हमारी परिस्थिति He पता है, knows our problems that we are facing. हमारे सारे समस्या पता है, He knows everything about you and me. आपके और मेरे बारे में सब कुछ पता है। But yet He has kept us as a pastor of that church. फिर भी उसने हमें उस कलीसिया का पादरी Just think रखा about है। it. सोचिए, इसके बारे में सोचिए। And therefore, और इसलिए we need to do our duty as a pastors of encouraging people. फिर भी हमें हमारा पादरी होने का कर्तव्य हमारे मंडली में करना है। Another point. एक और मुद्दा, By the way, God didn't ask Angel Gabriel to go and encourage Joshua. देख लीजिए, फिर परमेश्वर ने गैब्रिएल जो स्वर्गदूत है उससे नहीं कहा था कि यहोशू को उत्साहित करे। He could have done that. वो ये कर सकता And he है had done in the past. क्योंकि पहले उसने कर चुका है। He could have sent any heavenly agency to go and encourage Joshua. परमेश्वर किसी भी स्वर्गीय स्वर्गदूत को भेजकर यहोशू को उत्साहित कर सकता But था, he didn't do that. परंतु ऐसे नहीं किया। Even this we should remember. ये बात भी हमें सोचनी है। God asked one human being to encourage another human being. परंतु परमेश्वर ने एक मनुष्य को कहा कि दूसरे मनुष्य को उत्साहित करे। My friends, God doesn't perform needless miracles. मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है वो ऐसे चमत्कार Unnecessary miracles. कुछ अनुचित चमत्कार नहीं करते हैं। When God knows things can be done through you, जब परमेश्वर को पता है कि ये काम आपके द्वारा हो सकता है, He will never perform miracle there. तो वहां पर चमत्कार नहीं करेंगे। When God knows you that you can take this task in your hand, जब परमेश्वर जानते हैं कि ये काम आप आपके हाथ में आसानी से ले सकते हो, when God knows that you can go and counsel or comfort and say words of encouragement, परमेश्वर जानते हैं कि आप जो है किसी को आशा देने के शब्द कह सकते हैं, and then He will not at that time call somebody from heaven to do it. तो परमेश्वर जो है स्वर्ग से किसी और को नहीं भेजेंगे। A human being can understand other human beings' feelings. क्योंकि एक मनुष्य जो है वो दूसरे मनुष्य के स्वभाव को या फिर चरित्र को जानता है। This also leads us to know why Jesus came in the form of human. और इसीलिए हमें ये जानने में मदद होती है कि यीशु मसीह क्यों मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आए। He could have come in any other form. वो किसी भी रूप में आ सकते थे। A human being can understand each other's feelings. क्योंकि मनुष्य जो है वो एक दूसरे के स्वभाव को जानते हैं। There is a very good English sentence or line I can repeat and tell you. It says that a brother's sympathy is far better than an angel's embassy. A brother's sympathy is far better than an angel's embassy. ऐसा मतलब किसी ने कहा है कि भाई का जो ये भाई का जो भाईचारा या फिर भाई का जो प्रेम है, ये तो उससे भी बेहतर है जो कि स्वर्ग से कोई हमें भाईचारा देने आता है। Because in certain situations, just imagine an angel coming and telling you you'll be dead. You will not withstand the light and the righteousness of that angel. You will not stand. You will not understand. देखो, आपके सामने आप विचार करिए, अगर स्वर्ग से स्वर्गदूत आते हैं और आपको कुछ भाईचारे की बातें करने के लिए आते हैं, तो सबसे पहले बात तो उनको देख के आप मर जाओगे, या फिर आप उनके सामने उनके जो पवित्र रोशनी उनके सामने खड़े नहीं रह पाओगे। So if you find a spark of love in the heart of church member, अगर आप आपके मंडली के सभासदों के हृदय में कुछ प्रेम की रोशनी देखते हैं, immediately kneel down and blow that spark into flame. तो तुरंत आप घुटनों पर आइए और उस रोशनी को फैलाइए। If you find something good in church members, अगर तो कुछ अच्छी बात आपके सभासदों में आप देखते हैं, immediately try to blow it and make it big. तो उसे आप बड़ा कर दीजिए। Encourage the person that you can do this. तो आप उनको उत्साहित करें कि आप ये कर सकते हैं। God knows Moses well, क्योंकि परमेश्वर मूसा को अच्छी तरह से and जानते he हैं, was confident. क्योंकि उस पर वो भरोसा रखते He knew Moses can make it. और परमेश्वर को पता था कि मूसा जरूर ये करेगा। This reminds us of text in New Testament. और ये हमें नए नियम की और हमें He will never take you through problems that you will never bear. आप परमेश्वर आपको ऐसे परिस्थिति से नहीं लेके जाएगा जो आप सहन नहीं कर पाओगे। In the church ministry, you will come across this situation many times. क्योंकि ऐसी परिस्थिति हमारी मंडली में कई बार आती है। But remember the thought of Moses. परंतु मूसा के विचार के बारे में सोचिए। But if you are a man of prayer and if you are chosen by God, God will definitely take that task
and complete that task through you only. अगर आप प्रार्थना में जीवन रखते हैं तो परमेश्वर जो है आपके द्वारा का सारे काम पूरा कर सकते What हैं। about Joshua? तो यहोशू का क्या है? What about Joshua? यहोशू का क्या है? He's there since day one with children of Israelites. क्योंकि इजरायलियों के साथ में वो पहले दिन से ही था, Since day one, पहले दिन से, with his naked eyes, he has seen the power of God. क्योंकि उसने भी खुली आंखों से परमेश्वर के सामर्थ को देखा है। At first hand, he has seen the God's mighty hand leading them. और पहली बार उसने परमेश्वर के सामर्थ्यशाली हाथों को सारे इजरायलियों की अगुवाई करते हुए देखा है। At first hand, it's not some he had heard from someone. He himself witnessed the God's mighty power working among them. खुद यहोशू ने ये गवाही दी है और ये साक्षी रूप में देखा है कि परमेश्वर ने अपने सामर्थ्यशाली हाथों से सारे इजरायलियों के अगुवाई की है। And that God is giving this work to Joshua. और वही परमेश्वर ये महान काम यहोशू को दे रहा है। Do you think a person of that caliber requires encouragement? क्या आप ये विचार करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को ऐसा जो सबसे बड़ा कर्तव्य ये देना चाहिए? From human being, does that person requires encouragement? क्या मनुष्य के नजरिए से हम समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति को He himself has experienced Jesus' power in his life at first hand. क्योंकि उसने भी पहले ही दिन से पहले समझ से यीशु मसीह के सामर्थ को देखा है। He was man full of spirit. क्योंकि वो पूरे सामर्थ से भरा हुआ व्यक्ति He था। was man of righteousness. वो नीतिमान धर्मी व्यक्ति था। And no doubt why he chosen to lead the people of Israel in the place of Moses. और इसीलिए परमेश्वर ने यहोशू को चुना, ना कि मूसा को। And then do you think such person requires encouragement? क्या आप समझ सकते हैं कि फिर भी उन्हें उस यहोशू को उत्साहित करने वाले शब्द चाहिए? Again, God knows his people. फिर से परमेश्वर अपने लोगों को जानते He हैं, knows our weaknesses. हमारे कमजोरियों को जानते हैं। No matter how spirit filled we are, हम कितने भी आत्मा से भरे क्यों ना हो, no matter how righteous you are, हम कितने भी धर्मी क्यों ना हो, no matter how man of prayer you are, हम कितने भी प्रार्थना में कार्य no क्यों ना matter हो, how depth you are in the Bible and the prayer life, आप बाइबल के कितने भी गहराई में क्यों ना हो, yet you require a human touch. फिर भी आपको मनुष्य का स्पर्श होना चाहिए। Yet you require a fellow human being's comforting words. क्योंकि आपके सहकर्मियों का स्पर्श आपको होना ही चाहिए। And that makes me to be on the ground. और इसीलिए वो आपको खड़े होने के लिए सहायता That करते हैं। keeps me on the ground. और इसीलिए वो हमें जमीन पर खड़ा होते हैं। And that doesn't make me fly in the air. और वो हमें हवा में नहीं उड़ाते हैं। We have to be very humble हमें बहुत ही नम्र होना in चाहिए this service इस सेवकाई में, because we need each other. क्योंकि हमें एक दूसरे की जरूरत है। Joshua was exceptional, क्योंकि यहोशू जो है वो पूरी तरह से परिपूर्ण था, but yet he required encouragement. God told Moses to go and encourage Joshua. फिर भी उसे उत्साहित की जरूरत थी और इसीलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जाकर उसे उत्साहित कर। May God bless us as we do our ministry in the church, especially encouraging people. हम जैसे अपनी सेवकाई करते हैं, लोगों को प्रभु के राह में लाते हैं, तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर सबों को आशीषित करे। Because of words, so many things have happened in human life. The career has been boosted, the career has been gone to dust. क्योंकि शब्दों के वजह से ही हमारे जीवन में बहुत ही बदलाव आया है। हमारा जो करियर है वो बढ़ गया है या फिर हमारा करियर जो डूब भी गया है। God is challenging us to encourage us in every situation of our life. क्योंकि परमेश्वर हमें चुनौती में रखते हैं कि हम अपनी सेवकाई के द्वारा एक दूसरे को उत्साहित करें। God bless you as we do this. परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे।